Hi everyone, welcome back to my channel which is B Town with Box Office. I'm your host Nadia and I hope कि आप लोग सब ठीक हैं. Everybody's okay and safe in their homes. Today we have a very special guest inviting into the show. But before that, I hope everybody's keeping safe. I've heard the lockdown in India has been imposed and I hope everybody's being safe. It's a tough time for everybody. Hi Abhijit. Hello, hi. Hi, Can you hear can you me? hear me? I'm good. Yeah. Is it all clear? Sound as well? Yeah, I can hear you Okay, properly. perfect. कैसे हैं आप? ठीक है? All well with you? Yes, everything is fine. Uh, बस अभी लॉकडाउन लग रहा है शायद. So I think at I home. just read in the news that 24 hours Yeah, imposed. Oh my God. But otherwise, yeah, you're okay. You're yeah. staying safe at home. Yes, everything is fine. I was positive, like been always been positive, but 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 ऐसे भी पॉजिटिव हो गया था. जी. और Yeah, so तो अभी मेरा you क्वारंटीन अभी खत्म हुआ है. So okay. So you've tested yeah. negative. सब ठीक है. You're Yes, feeling yes, better? yes. Yes, Okay, I'm getting चलो. better now. Okay, you थोड़ा look और well. वीकनेस है. Yeah, I'm getting अभी एक्चुअली सब घर का खाना एंड सिंपल एवरीथिंग इज वेरी प्योर थिंग चल रहे हैं Yeah, तो it's getting better for me. yeah, I'm sure, and I'm sure you'll be recovering very soon. And this Yeah. shall to pass. I guess just we all can just pray and hope कि सब ठीक हो जाए. अब it's been just when we thought 2021 will be a blast and it'll be all good and we are back to. या आई होप क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही था. ऑलमोस्ट Mhm. ऑलमोस्ट सेम टाइम में लॉकडाउन स्टार्टेड. जी. और एंड वी वर लाइक थिंकिंग कि businesses will start after 3-4 months, and when it started everybody was happy, and then everybody become like चलो अभी तो खुल गया सब कुछ, everything is gone And that back that to didn't last normal. for long. Yeah, it didn't last long. वापस अभी. So I yeah. know. Hi Just we Shefali, can hi, I'm just fine, thank you. Yeah, sorry. okay, brilliant. So no, it's all right. Please, you can say hello to your fans who are joining in, and then if you allow me, I'll start with the question answers. Yes, so first of all, everybody, hello, hi. Shefali and everyone, all my friends who are there. Thank you so much. I am keeping well. And yes, let's start. So we just have a few couple of questions of mine. Then I have few Yes, fan questions, and then we'll move on. So basically, the fan questions comes in from Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Middle East. If right. you have a big fan following here, so some questions have come in. Great. So start karte hain. Of course, you have done many reality shows, and you have won as well. And Indian Idol. So उसका experience बताइए. वैसे तो हम सब ने follow किया देखा है बहुत ही सराहा लेकिन आपका experience कैसा रहा? इंडियन आइडल वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस क्योंकि बेसिकली उसके पहले ऐसा कोई शो था भी नहीं. जी. इंडियन आइडल वाज द फर्स्ट शो जिसमें पब्लिक वोटिंग होने वाली थी. बिफोर दैट इट वाज सारेगामा था शायद. सारेगामा पा भी नहीं था, सारेगामा आई, अगर मेरी मेमोरी सही है तो. सो तभी तभी ऐसा एक कल्चर था कि इफ यू वांट टू डू समथिंग स्पेशली who don't have any background about music and everything, तो सारेगामा में जाओ आप, मिलो, and then try to get into this competition thing. But Indian Idol came with a different format, and even I must tell you कि even the people who are working in the show, उनको भी आइडिया नहीं था कि ये शो है कैसा, ये कैसे होने वाला है. हम Imagine. लोग या हम लोग जब टॉप 10 में आए तो हमें पॉप आइडल जो अमेरिका में सब यूके में जो सबसे पहला सीजन हुआ था, तो उसको दिखाया गया. और हम लोग को बताया कि देखिए ऐसा ऐसा होगा शो, यहाँ से ऐसे आएंगे, जजेस ऐसे बैठेंगे. सो देन थोड़ा थोड़ा वो आइडिया आने लगा. लेकिन फिर भी शो जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हर दिन या कभी ना कभी 2 दिन में एक बार ऐसा कुछ ना कुछ अलग चीज आती थी जैसे. और फिर उससे लोग सीखते थे और फिर हम लोग और अच्छा बेटर करने की कोशिश करते थे. द क्रू मेंबर्स, एवरीबॉडी, कभी कुछ ग्लिच आ गया, कभी कोई अलग चीज आ गई. सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, आई मस्ट टेल.
I'm sure. आपने obviously won the title and with the, I'm sure with all the fame and all. फिर आपने उसको host भी किया. So you were Yeah, actually on the other side of the show. So how did that? yeah. उसकी experience रही with new contestants? मैं एकदम ही इंडियन आइडल फिफ्थ सीजन, इंडियन आइडल 5 आई होस्टेड। और जब मुझे बोला गया होस्ट करने के लिए, आई वाज लाइक ठीक है करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इट विल बी सो डिफिकल्ट, Really? क्योंकि या इट वाज, क्योंकि आप जब बात करते हो ना, आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू, आई हैव वट एवर आई एम थिंकिंग इन फ्रॉम माई माइंड, आई एम जस्ट सेइंग इट, उसमें थोड़े Hmm. से चीजें मैं ऐड ऑन करूंगा। लेकिन जी. वहां पर आपके कैमरा के पीछे एक स्क्रीन रहती है, और वहां पर सारी चीजें आपको रीड You करके have to read बोलना it है। out. या या एंड व्हेन यू आर रीडिंग दोज लाइंस एंड एवरीथिंग, देन यू हैव टू गिव द राइट एक्सप्रेशन ऑल्सो। मतलब अगर आपको कहना है कि नादिया कम ऑन, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, ऐसा कुछ है, तो you can't be, you are reading and Nadia, thank you so much for calling me, you can't do that. You can So absolutely. yeah, so keeping that expression, keeping that a connection also with everybody, it was a very brilliant experience also, I must say. जितना भी सीखने मिला, वो सीजन वाज द बेस्ट सीजन टू लर्न। मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत बहुत बिजी रहता था वो टाइम मेरा, तो बट बहुत मजा आया। एंड मुझे ऐसा हमेशा ये लगता है कि मैंने जो भी किया है उसके बाद मैं ज्यादा मतलब वो एक्सपीरियंस से मैंने ज्यादा सीखा है। तो जैसे फिल्म की, तो फिल्म होने के बाद मैं ज्यादा अच्छे से करूंगा, ऐसा मुझे लगने लगा। Of course, once you do it, then you know कि या आप कैसे करना है. I was like या excitement. Oh my God. या Obviously, आपने बताया that you also tested positive, but या what do you the माहौल, the pandemic ने industry को very badly hit किया हुआ है. I mean, करेक्ट, especially our entertainment industry, not just in India. I'm राइट, talking about UAE, Middle East, all over the world. So, या what are your views on that and on the industry's been literally on a lockdown? Yeah, especially musician, performers, dancers, not television people. Television एक अलग एक बंद कमरे में शूट किया जाता है, तो that's a different thing. But performers like us, we are traveling, we are going places to place and performing there. The That is shows. very difficult nowadays. और मतलब हम लोग तो भी फिर भी ठीक है, लेकिन जो छोटे आर्टिस्ट हैं, छोटे म्यूजिशियंस हैं, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा खासकर, और अभी भी है, अभी तो और ज्यादा वर्स्ट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। लाइव शोज अभी भी बंद हैं. The gatherings या are not allowed. So, yeah. एंड स्पेशली प्लेसेस लाइक मुंबई में ऑन एंड ऑफ क्राउड की जो लिमिटेशंस थी वो बहुत ही कम थी जी. कंपेरेटिवली दिल्ली एंड अदर सिटीज। तो मुंबई, खासकर मुंबई आर्टिस्ट ने बहुत सफर किया है, एंड दे आर स्टिल सफरिंग इन दिस बैड And that's पैंडेमिक। the main hub, if I would say that Mumbai is like for the या industry. So, और सारे जो म्यूजिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, वो सभी यहीं पर है, तो यू नो ये एक बहुत बहुत बुरा टाइम है फॉर फॉर आर्टिस्ट। अगर मतलब हर कोई ये बात करता है ना कि जो नॉर्मल शॉप वाले लोग हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनकी big wages. प्रॉब्लम्स ज्यादा है। बट Hmm. फिर भी उनके प्रॉब्लम्स तो फिर भी लॉकडाउन था तब के है। बट ये म्यूजिशियन जो है वो सारे साल भर से इसी सिचुएशन में है। दे डोंट Absolutely. हैव Always up वर्क। and या downs, exactly. Yeah. या And now it's just been down for like last 1 year. It's been really hard. या एंड Saying that the events, live events are not allowed at the moment. So. yeah, public events are not allowed, and especially even weddings, जो musical events होते थे, उनकी gathering इतनी कम हो गई है, so most of the organizers are not doing those kind of shows. So that's how it's become a little difficult, but hopefully we'll Just come back. praying that hopefully it all bounce back and entertainment Yeah, industry bounce back. So, yeah, आपने
मूवीज में काम किया है, टेलीविजन शो, आप जज रहे हो, आपने सिंगिंग की, या आपने होस्टिंग किया, कंप्लीटली मल्टीटास्क। या सो कुछ बात है, एनीथिंग लेफ्ट ऑन द चेकलिस्ट? मैंने एक्चुअली मैं वन ऑफ द सिंगर्स रहूंगा, मतलब जिन, हाँ, सिंगर्स में से रहूंगा जिसने मतलब पूरा सब कुछ किया है। कैमरा के सामने जो भी चीजें हो सकती है वो सभी किया। मैंने एक्टिंग की है, जी। मैंने होस्ट किया है, मैंने डांस शो किया है, कॉमेडी आप की है जज भी मैंने, रहे हो। यस, जजिंग की है, कॉमेडी शो भी किया है, ऑलमोस्ट मैं आरजे भी था बाय द वे। मैं ओह एक, ओके, आई थिंक आई या लिस्ट। सो आई वाज द आरजे फॉर वन ऑफ द रेडियो स्टेशन फॉर सम टाइम। एक सेलिब्रिटी शो में होस्ट करता था। हाय प्रीति, हाय, सॉरी मैं बीच बीच में लोगों से भी हाय हेलो कर रहा हूँ। सो सो मैंने ये पूरा टाइम, मतलब अभी तक हर हर चीज आजमाई है, हर चीज मैंने की है, और एंड आई ऑलवेज एंजॉय वर्किंग विद इन अ डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन। तो बहुत मजा आता था अलग अलग चीजें करने में, एंड स्पेशली इन चीजें करने में जो सबसे अच्छी बात होती है वो है नए लोगों को मिलना, यू नो, या एंड उनके थॉट प्रोसेस समझना, वो कैसे काम करते, ये ऑब्जर्व करना, ये सारी चीजें ना, ये बहुत कुछ सिखाती है, मुझे लगता है। Exactly. The more you meet people, the more you learn from them. I think या life is all about learning. It's just never या non-stop learning. या So, ये आपने बहुत सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है, many big names as well. So, आप which was your best experience? क्योंकि मुझे इनके साथ मजा आया काम करने में. I'm sure you have enjoyed with all, but एक जो आपके करीब हो कि नहीं मजा आया था. It's a good मुझे experience. मैंने ऐसा मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि इनके साथ मैंने ज्यादा एंजॉय किया। बेसिकली मैंने सब ऑलमोस्ट जिनके साथ भी काम किया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मेरा फर्स्ट सॉन्ग हिमेश जी के साथ था, तो हम्म। हिमेश जी का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वो वो अपने काम में रहेंगे, यू आर रिकॉर्डिंग द सॉन्ग, एंड सडनली ही विल कम एंड ही विल से, अरे क्या यार, ये अच्छा लग रहा है यार, कर दो यार, फाइनल हो गया, ये खत्म कर दो, ऐसा करके, यू नो, एंड इन हिज ओन स्टाइल ही विल ऐसा हाथ हाथ घुमा के, ये चीज रख दो, ऐसे करके करके ही विल फाइनल द थिंग। सो दैट वे हम्म। ही इज वेरी क्विक रिकॉर्ड करने के लिए। शंकर भाई का एक अलग एक्सपीरियंस है। शंकर भाई वन ऑफ द, मतलब एक तो इतने ब्रिलियंट म्यूजिशियन सिंगर है, और हम्म। और बट आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराएंगे कि आप आए हो और उनके लिए गा रहे हो। उल्टा उनको ऐसा लगता है कि बस इसको और कंफर्टेबल मैं कैसे बनाऊं, मतलब हम्म। उनका बस चले तो सिंगर के लिए गादी वादी गद्दा वद्दा भी लाके दे इन Sweet. द स्टूडियो। या इज वेरी स्वीट, मतलब वो सिंगर को मतलब एकदम प्यार देते हैं, मतलब वो एक अलग उनका एक्सपीरियंस है। प्रीतम दा का एक अलग एक्सपीरियंस है। प्रीतम दा इज ऑलवेज बीन कि हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, फिर सडनली उनका एक अलग ही है। विशाल शेखर, विशाल शेखर के साथ तो काम करना मतलब इट्स लाइक, मतलब आप जाते हो, उनसे मिलते हो, आप गाना सुनते हो, गाना याद वाद कर लेंगे, और फिर बातें भलते ही होते हैं, कुछ अलग ही बातें चल रही है, घर में क्या हो रहा है, कि कौन है, ये क्या चल रहा है, दोस्तों के बारे में, एंड देन ही विल रिकॉर्ड योर सॉन्ग, और जो पहला टेक है वही रखेंगे वो लोग। दे डोंट रिकॉर्ड अगेन एंड अगेन, दे विल से कि हाँ ये सही है, डन। तो एवरीबडी इज Different यू नो, experience. या दे हैव देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, एंड Absolutely. which is beautiful to understand. I'm sure you probably learn from everybody. Like you say, you love meeting new Yeah, people, picking up something from somebody. right. So, yes, Right. wow. आप इंडस्ट्री में काफी अरसे से हो. Do you feel कि there is a lobby जो newcomers को face करना पड़ता है, or you think no, you can talk the best क्योंकि आप इंडस्ट्री में हो? कभी आपने आ, कोई लॉबी को फेस किया और something? है लॉबी, मुझे लगता है कि सब सब जगह लॉबी होती है, मुझे मतलब उसको हमें नेगेटिविटी के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इफ यू आर कंफर्टेबल विथ योर फ्रेंड्स और सम पीपल, यू यू ऑलवेज लव टू वर्क विद दोज पीपल। True. यही एक चीज है बस, कि आज मेरे जो दोस्त हैं, मैं चाहूंगा कि मैं पहले उनके साथ काम करूं,
तो सही बात। और वही हो रहा है उसी को एक इसमें एक नाम दिया गया है लॉबी का, एंड दैट इज ऑलवेज बीन देयर। इट्स नॉट कि अभी है, पहले से रहा है। अभी एक एक बात अच्छी है कि वी हैव नॉन फिल्म म्यूजिक, so there are many other chances like singer like us, I always love doing non-film music. I was always been मतलब मेरा स्टार्टिंग करियर ही शुरू हुआ नॉन फिल्म से। सो तो किसी को भी अगर बड़ा बनना है आज, यू डोंट हैव टू वेट एंड यू डोंट हैव टू get into that lobby and circle and everything. You can just start doing something on YouTube and you might become famous. Absolutely. That's what a lot of actors are now saying that thanks to OTT platform, almost everybody's Yeah. managing to get work. If film nahi mili, to bhi there's web series and there's many things Yes. coming out. And there's a, Yeah. chance for everybody to work. Amazing. अपने आपके fan questions की तरफ जाती हूँ before they all say she's not asking anything about us. So Ali from Dubai, who has inspired you in your career? My first inspiration was my uncle, क्योंकि वो स्टेज आर्टिस्ट हैं, तो वो स्टेज पे मतलब वो शोज करने जाते थे, एंड ही इज आल्सो मुंबई आर्टिस्ट। तो उनके साथ मैं ट्रैवल करता था, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्ट गेटिंग दैट इंस्पिरेशन कि अरे मुझे भी सिंगर बनना है, मुझे भी गाना सीखना है, उनके जैसा गाना है। आई नेवर हैड दिस बिग ड्रीम दैट मुझे बॉलीवुड में जाना है, या आई वांट टू डू प्लेबैक और समथिंग। But uncle started telling me, and he told me the first time कि if you want to become a musician or singer, you should learn music properly. And then I started learning music, और फिर उसके बाद वो जर्नी शुरू हुई। After that, after uncle, I think my biggest inspiration will be किशोर कुमार। किशोर कुमार मतलब मेरे लिए मतलब भगवान जैसे ही रहे हमेशा। उनके गाने सुन सुन के मैंने अपनी एक स्टाइल बनाई हमेशा। So amazing. बचपन में कभी सोचा था कि singing or were you singing in school or something ever like you knew? Yes, मेरा फर्स्ट जो सिंगिंग परफॉर्मेंस था वो दैट वाज इन माय स्कूल। सो अच्छा। हाँ, और वो भी एक्सीडेंटली हुआ था बेसिकली, बाय द वे, क्योंकि मुझे पहले हम लोग, आई विल टेल यू, आई होप यू हैव टाइम Yes, टू yes, टॉक। please do. सो मेरे स्कूल में एक कॉयर के लिए सब ऑडिशन हो रहा था। आई वॉज वेरी स्मॉल, 11 years, 7, हाँ 11 years ओल्ड रहूंगा, 10 years ओल्ड। तो हम लोग सब बच्चों को खड़ा करके जो भी आ रहे थे, हम लोग एक ग्रुप बना के हम लोग सब कोरस में गा रहे थे। Hmm. So my music teacher realized that I am only have a मेरी जो वॉइस है वो थोड़ी सी बोल्ड है। So he told me कि you come out, you are singing, you are sounding I know. different from others। तो मुझे निकाल दिया एक्चुअली पूरा ग्रुप में से, और बाकी सब लोग गा रहे हैं, मैं आ गया अपने क्लास में। एंड मैं बैठ के ऐसे ही बोल रहे थे चलो ठीक है जो भी है। आई वाज नॉट सो मतलब बुरा बुरा नहीं लग रहा था। फिर मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि मैं भी अपना गाना सोलो सॉन्ग लेके गया था परफॉर्म करने के लिए, मराठी गाना था वो, बट वो रिजेक्ट हो गया। तू जाना चाहेगा क्या? तो बोला हाँ चलते हैं। तो मैं गाना लेके ऐसे ही चला गया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। एंड टीचर सेड कि अरे वेरी नाइस, यू आर साउंडिंग नाइस, अच्छा गा रहे हो तुम। तो मैं जहाँ कोरस में गाने वाला था, वो निकल के मैं सीधा मेन परफॉर्मर उसमें बन imagine this is what गया। we call destiny. Yeah, And so your we'll luck. always lucky, I think. Yeah, always been Imagine and lucky। if people now hearing your story, they're like, this is the kid who was actually taken out and look where Yeah, he is today. These are yeah। some amazing stories that we get to know. Do you feel, Manisha, again from Dubai, how reality show helps contestant build their career? Do you think, does it help build careers? इट डज हेल्प डेफिनेटली, क्योंकि देखिए बहुत बहुत कंट्रोवर्सी भी होती है, एंड एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट रियलिटी शोज एंड द विनर्स एंड द सिंगर्स कि ये क्या करते हैं, क्या होता है, नहीं होता है। बट Yeah. अगर रियलिटी शो जैसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो फिर जो लड़कों को या लड़कियों को कोई गॉडफादर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है फ्रॉम द इंडस्ट्री, हाउ दे विल गेट इनटू दिस We इंडस्ट्री? noticed. Yeah. बहुत डिफिकल्ट है पहले तो ऐसा होता था कि लोग स्टूडियो के बाहर बैठा करते थे। आई रिमेम्बर
मैं जहाँ जिनके पास सीखता था म्यूजिक, तो हम्म। मेरे साथ जो एक दूसरा लड़का आता था, वो हम लोग गाना सीखते थे, और वो रेंट पे रह रहा था। तो मैं उससे पूछा कि तो अभी क्या करेगा, घर जाएगा, रेंट पे रह रहा है तो क्या? बोलता नहीं, अभी मैं खाना नाश्ता करूंगा और फिर मैं फेमस स्टूडियो जाऊंगा, उधर बैठूंगा थोड़ी देर, उधर कोई मिलेगा तो मैं फिर जाऊंगा दूसरे स्टूडियो, उधर बैठूंगा। और पूरा दिन ये लोगों का चक्कर होता था, ये लोगों का काम होता था। दैट काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन से हम लोग बच गए, एक्चुअली एक साइड से कहे तो। एटलीस्ट आई रिमेम्बर, मेरा दोस्त मजाक मजाक में कहता था कि मैं अपने दोस्त को सिंगिंग सिखाऊंगा। तो बोला क्यों? बोलता कि एटलीस्ट दे हैव अ फ्यूचर और दे विल गेट समथिंग। तो ये एक बाद में इंडियन आइडल और रियलिटी शो के बाद में ही एक लोगों को लगने लगा कि म्यूजिक में भी करियर है, लोग पैसा कमा सकते हैं। जी। And yes, reality show makes a lot of, and second thing, reality show के कोई भी सिंगर, मतलब 99.9% सिंगर्स सारे अच्छे म्यूजिक ट्रेनिंग लेकर आते हैं। दे आर ओके। नॉट, मतलब जस्ट एक दिन उठ दे के नॉट उनको रॉ। लगा, या दे आर नॉट रॉ सिंगर्स। वो दे आर रियली वेल ट्रेन्ड सिंगर्स। अब ठीक है, नो। बाकी सब तो डेस्टिनी है, हाउ मच एवरीबody works, और that is एक a ही destiny. जीतेगा या दो ही जीतेंगे, सो दैट्स रूल ऑफ द गेम। Yeah, 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 it's like that. How has your journey been post Indian Idol, Rami from Sharjah? पोस्ट इंडियन आइडल बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि बिफोर इंडियन आइडल आई वाज जस्ट लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, अपना अच्छा अपना घर बार चलता था जो भी है। आई वाज इन कॉलेज, कॉलेज खत्म ही होने वाला था। तो कोई ऐसा टेंशन नहीं था, एक एक प्रेशर था कि कुछ करना है लाइफ में। बट आफ्टर इंडियन आइडल, वही सिमिलर सिंपल लाइफ जीने वाला एक बंदा, और सडनली मतलब ऋतिक रोशन मिल रहा है। हाँ। यू नो Wow. मतलब शाहरुख खान 10 मिनट हाथ पकड़ के आपसे बात कर रहा है, तो यू डोंट नो कि हाउ टू रिएक्ट विद It's दिस so काइंड ऑफ overwhelming. सिचुएशन। Oh, या yeah. आपको शिल्पा शेट्टी बोल रहे आई लाइक योर स्माइल, तो यार यूर लाइक अरे, That just दिस made इज your लाइक, day. या एंड इवन यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट कि कैसे, क्या क्या मतलब क्या बोले यार ये अभी। दिस इज अन, मतलब रीचेबल पीपल जब आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट बिकम्स अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर यू। तो True. तो इट वाज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द होल थिंग। कौन सच्चा है, कौन सही नहीं है, कौन गलत है, कौन क्या सही है क्या गलत है, ये समझने में के Because लिए you're बहुत new टाइम and you लगा। have experience, I'm sure. या मतलब Absolutely. आप गिरे, आप हर बार गिरे, आप फिर सीखे उससे, कई रॉन्ग डिसीजन लिए, फिर उससे सीखे, तो ऐसे सीखते Hmm. सीखते गए। इट वाज बिल्कुल। नॉट लाइक कि हमने हमारे सीनियर से एब्जॉर्ब किया, ऑब्जर्व किया, उनको समझा और फिर आगे बढ़े। इट वाज ओनली ऑलवेज वी ट्राइड एंड टेस्टेड एंड देन वी मूव्ड अहेड। इट वाज लाइक दैट। Right. Jasmine from Abu Dhabi. Your debut in 2009, Lottery, या debut movie. इन फिल्म। That's a really funny laugh that you had. I'm assuming बड़ा मजा आया होगा because you're laughing. Please tell us. हाँ, मुझे एक्चुअली जब फिल्म की ऑफर्स बहुत पहले से आने लग गई थी, और और हम लोग जाते थे एकदम, मतलब उत्साह से, एक फुल इंथुजियास्टिक होके एकदम जाते थे स्टोरियां सुनने भी। और बहुत फनी स्टोरी रहते थे, कोई कुछ भी बोल रहा है या कोई एकदम हीरोइक कैरेक्टर है। अब मैं ऐसा सिंपल सीधा साधा लड़का जैसे बिहेव करने वाला Hmm. इंसान, और गेटिंग बाइक पे आ रहे हो सर, आपकी एंट्री ऐसी होगी, and और फिर आप ऐसे बोलोगे, तो स्लो मोशन में होगा। तो आई आई नेवर रिलेट टू ऑल दीज You could सिचुएशन और, visualize yourself. हाँ, जब जब लॉटरी का प्रपोजल आया, तब लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर मतलब मेरे जैसा ही है, मैं सोच सकता हूँ ये फिल्म करने के लिए, इट्स नॉट बैड, ऐसा है। एंड फिर भी मुझे हमेशा, मतलब हम लोग पायलट शूट कर रहे थे इस गाने का लॉटरी के लिए, और मुझे ऐसा लग रहा था कि तभी एमटीवी बकरा हुआ करता था, बहुत फेमस था। जी तो जी। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब भी कोई तो यहाँ से कोई साइरन या कोई तो बाहर आएगा
और बोलेगा बकरा, तब तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, कोई फिल्म विल्म नहीं हो रही तेरे साथ, चल जाओ ऐसा करके. So, but yeah, it was a different experience to do acting. Acting एक अलग प्रोफेशन, अलग थिंकिंग है, आप सोचते हैं अलग हो, तो बहुत मजा है. लेकिन एक्टिंग करना एक बहुत मुझे बहुत मजा आया. मैंने बहुत एंजॉय किया एक्टिंग करना. Awesome. Hopefully आगे भी आपको देखेंगे एक्टिंग में भी, और जब सब खुल जाएगा चीजें नॉर्मल लेट्स होंगी. सी. So yeah, definitely. Abdullah, any music director on your wish list to work with? अभी रहमान साहब बचे हुए हैं. Okay. I just did his press conference 3 days back for Yes. 99 pounds, yeah, on Zoom. Yeah, very Humble excited person. about that film. Yeah. And it's with theater. So हमने last week, like the all media from Dubai, Saudi, Bahrain, Yeah, everybody joined in. We arranged that. Yeah. It's a right. brilliant. So hopefully, Yeah, I hope it will work. yeah. बट वही अभी मतलब विश लिस्ट में है एक. अदरवाइज नाउ आई हैव स्टार्टेड कंपोजिंग, आई हैव स्टार्टेड मेकिंग माय ओन सॉन्ग. तो Okay. तो आई एम जस्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट पार्ट. Now I'm sure many youngsters must be looking कि कब अभिजीत हमें लेगा and we can compose music with him. So I'm sure there's a lot of या people looking forward, है ना? बट मैं Diksha, एकदम उनके जैसा रहूंगा एकदम, मतलब एकदम जो एकदम सपोर्ट करते ना यंग yeah, सिंगर्स को. because that's how it should be, I guess. Because when या आपने start किया, you got a lifting hand, and then I guess या that's just life. Okay. सब राइट. एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाते हैं. Diksha, song closest to your heart, फ्रॉम माय लिस्ट. your list, or maybe like you think you're a fan of Kishore Kumar, anything that touches you. मुझे जो मुझे सबसे ज्यादा मेरी लिस्ट में से पसंद है वो लफ्जों में कह ना सकूं है. और और वैसे देखा जाए तो मुझे बहुत सारे गाने पसंद हैं जिनको मतलब जो बाकी के सारे बाहर के गाने हैं वैसे. वन ऑफ माय फेवरेट वाज लाइक जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए. So that is my one of So favorite songs. amazing. Oh my God. I'm like getting goosebumps. Okay. What does a singer need nowadays besides a voice? I think the best part is, सबसे अच्छी बात ये है कि now you don't have to focus on voice actually, but you have to you should know an instrument. एक इंस्ट्रूमेंट बजाने आपको आना चाहिए. You should know a little bit of programming. क्योंकि आज का जो दौर है, टाइम जो है वो चेंज हो चुका है. एवरीबॉडी, even if you see Arijit Singh and other musicians, big playback singers also, they were good program. They are good programmers also. So don't restrict yourself to be only singing, singer ही बनना है मुझे. Everybody now, everyone should know instrument also, programming also. Become a complete musician, then just rather than just focusing on one part of the One particular. whole industry. Yeah. लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, इससे पहले फिर तो हम, मेरे पास बहुत लंबी रिक्वेस्ट है गानों की, लेकिन I'm sure जो भी आप कंफर्टेबल हो. डू यू थिंक Yeah. सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट? क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं यंगस्टर्स आ जाते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, दे नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट. सो व्हाट्स योर Yeah. टेक? यू हैव फेस I am दैट, या एनी यंगस्टर्स यू नो दैट जितनी बेनिफिट्स हैं उसके साथ उसकी यू नो प्रोज एंड कॉन्स सोशल मीडिया के? आई एम एक्चुअली अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन. तो मेरे लिए मतलब मेरे लिए एक्सेप्ट करना सोशल मीडिया यही बहुत बहुत डिफिकल्ट था. ओके. आज भी डिफिकल्ट है. आज भी आई एम नॉट सो मच कंफर्टेबल विद सोशल मीडिया. ऐसा नहीं है कि मैं, अगर आप मुझे ऐसे पर्सनली मिलोगे तो मैं आपको कभी बोर नहीं करूंगा. बट सोशल मीडिया में यू नो ऐसे इंटैक्ट रखना लोगों को, वो मुझे बहुत लेट समझ में आ रहा है. अभी भी शायद मैं सीख रहा हूँ. बट यस, इट्स वेरी बिग प्लेटफॉर्म सबके लिए, म्यूजिशियंस हो या एक्टर्स
यू नो कंटेंट क्रिएटर, इन सब के लिए एक रेवेन्यू भी क्रिएट कर रहा है, एंड दैट इज अ गुड पार्ट. आज आप That's a घर बैठे भी पैसे बना रहे हो, so YouTubers, nothing you bad have about it. gamers and YouTubers as well. Yeah, Totally. and on the trolling part, I want to tell everybody here, ट्रोलिंग में खासकर म्यूजिशियन में, एक बार हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑल्सो वाज ट्रैवलिंग. तो मैंने उसको पूछा ये सवाल कि यार ये लोग जो ट्रोल करते हैं आपको, हाउ यू फील अबाउट इट, कि कभी कोई किसी ने कुछ बोल दिया, यू डोंट फील बैड अबाउट इट कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया. बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो आपको ट्रोल कर रहा है वो उसके लिए आपका कंटेंट 3 मिनट का है या 4 मिनट का है. he is not thinking about you, he is just watching that content and saying whatever he wants to say. आप उसमें टाइम डालते हो, आप उसमें मेहनत डालते हो, सोच लगाते हो, तो आपके दिल के बहुत करीब होता है, बट उसके लिए नहीं है. एंड यू हैव टू थिंक इट लाइक दैट, यू डोंट हैव टू थिंक सो मच अबाउट ट्रोलिंग, क्योंकि वही लोग हैं जो आपसे नफरत करते, कल आपका अच्छा गाना आएगा, आपको प्यार भी वही करेंगे. Yeah. सो ज्यादा ट्रोलिंग पे ध्यान नहीं देना चाहिए. Yeah, absolutely. चलिए जी, ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर्स के राउंड. अब जी. आपके सॉन्ग्स, फर्स्ट एनीथिंग दैट व्हिच यू वुड लाइक टू सिंग, कि आप एनी लाइक अ मेडली और एनीथिंग व्हिच I've seen all your, एंड फिर एक दो रिक्वेस्ट हैं आपके सॉन्ग्स की. I'll let you know. मोहब्बत लौटाऊंगा ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा. एंड I'm saying correct, राख में दिल फकीरा, या आपके फैन yes. request and anything that you would like to. So yes, first of all I'll say, I want to say hi to all the friends. सब लोग आके बेचारे हाय करके जा रहे हैं. Hi Nikhil Namit is there, and many other, Natasha, all, Rahul Tiwari, thank you so much for connecting. Yes. I think Laman lady Palika Sharma is asking, आपकी favorite female playback singer? Let's answer. मुझे सबसे ज्यादा पसंद श्रेया घोषाल है. आई थिंक आई लव श्रेया घोषाल वॉइस, एंड हाउ शी परफॉर्म, हर चीज, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल अबाउट हर सिंगिंग स्टाइल. आज के टाइम में भी जो उन्होंने एक अपने इंडियन सिंगिंग को बरकरार रखा, और वो इट स्टिल साउंड्स दैट फ्रेश एंड न्यू, which is remarkable, actually beautiful. And imagine she also joined so young and through, I think, Saregama. So imagine, yes. And where we have done lot of shows. जब हम उनके नए गाने आ रहे थे, और मेरा भी शो खत्म हुआ था, तो हम लोग ने बहुत मिलके साथ में शोज किए. एंड शी वाज वेरी वेरी पोलाइट, एंड बहुत रिस्पेक्ट देकर बात करने वाली लड़की है. शी मतलब वो एक अलग ही क्या कह सकते, कैरेक्टर है, एक व्यक्तिमत्व बहुत कमाल का है उनका. So yes, so we'll start with मोहब्बत ही लुटाऊंगा, क्योंकि everybody says कि मोहब्बत ही लुटाऊंगा is my life song. I think it's a turning point in your life, and I think लोग एकदम मतलब people start. Yeah. कितना सुहाना सा ये अपना सफर है, आपकी दुआओं का सारा असर है, आपका है सब कुछ, आपको नजर है, आपकी इनायतों पे यार बार बार सर को मैं झुकाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा, मोहब्बतें लुटाऊंगा, मैं छेड़ के मन का साज फिर गाऊंगा, फिर सबके दिल को आज बहलाऊंगा, इस मंजर को, इस पल को भूल ना पाऊंगा, मैं भूल से ना पाऊंगा. Wow, mashallah. Amazing. I'm lost with words. I mean, when you think singing कि हर कोई गा सकता है, when I actually think about it and the way you guys sing, any singer, it's you're blessed.
I think और कोई नहीं, ऊपर वाले की blessing है. Not हाँ, every. yes, of course. मतलब one of my friend told me कि सुरों को समझना, जी. understanding the right सुर, the pitch, ये गॉड गिफ्ट जो हमको दिया हुआ है, वो मतलब वो सबको नहीं मिला है. वी नहीं, आर लकी बिल्कुल. पीपल दैट वे, क्योंकि And through your singing, you make people या happy and you bring यस smiles to the face. I mean, every time you would sing, यस you probably see people झूम रहे हैं because you take them यस away from what's happening at the moment. एंड देन बट ये कभी कभी एक्सप्लॉइट भी होता है. क्योंकि फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, आपको कहीं मिला, अरे अभी सावन, अरे यार एक गाना सुनाओ एक यार, गाना तो सुना दो. तो दैट इज ऑल्सो देयर. मैं कभी कभी आजकल मैं बोलता हूँ कि मेरा एक तकिया कलाम हो गया लोगों को. कोई मुझे बोलता है कि आप गाना सुना, तो मैं उनको बोलता हूँ, यार तुम लोग डॉक्टर को कभी बोल सकते हो कि ऑपरेशन करके दिखाओ. बिल्कुल. फिर एक सिंगर को क्यों ऐसे तुम यार परेशान कर रहे हो. बट अगेन प्यार है लोगों का, so we should बहुत, respect बहुत. that is there. So yes, so let's take some other request also. I'll take Yes. one Guys, request. do drop in your request. The second song request that I have is Firak Mein Dil Fakira. But anything उसके अलावा भी. I'll do Dil Fakira. Dil Fakira is also from my album. Any और story behind that? दिल फकीरा एक्चुअली एक सूफी सॉन्ग राइटिंग था, और सूफी सॉन्ग को हम लोग कैसे मॉडर्न लोगों तक पहुंचा सकते हैं. दैट वाज द थॉट कि हम लोग मतलब जो लिखावट है वो तो सूफी है, वो तो डीप है, थॉट है, बट उसको एक नए एक तरीके से हम लोग लोगों के सामने लाए. एंड दिल फकीरा वाज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट. वैसे बहुत सारे, जुनून भी वैसा ही एक है. So आप I'll हर do Dil गाना Fakira. सोचने लिखने से पहले do you visualize like कुछ स्टोरी होती है गाने के पीछे या? मेरे हर गाने के पीछे स्टोरी, आई कैन टेल यू. मतलब हाँ, मतलब मेरा बुक बन सकता है ये हर गाने के पीछे क्या क्या स्टोरी है. मैं एकदम सब कुछ एक चीज बता सकता हूँ. या दिल फकीरा. दिल फकीरा रू बंजारन थिरकू तेरी ताल पे साजन, ओ ये दिल फकीरा रू बंजारन थिरकू तेरी ताल पे साजन, बजा चुटकी जो चले नौटंकी, हो मन बसिया हो तेरे मन की, दिल फकीरा रू बंजारन थिरकू तेरी ताल पे साजन. So it's about God again. It's everything is because of you, and everything is happening because of you. आप एक चुटकी बजा दो, सब कुछ कर सकते हो. So बिल्कुल. it's all about that. I'll Absolutely. sing And Junoon also. Somebody is saying Junoon. your- So I'll tell you Junoon का story. Junoon is हाँ. composed by Amit Trivedi. और अमित त्रिवेदी के साथ भी एक अलग एक्सपीरियंस था. पहले जुनून was not supposed to be the first song of the album. Okay. क्योंकि हमने मिथुन, जिन्होंने बहुत सारे दूसरे गाने भी, हिट गाने भी, एक अभी यहाँ क्या एक तुम ही हो दिया था उन्होंने, तुम ही हो के जो म्यूजिक डायरेक्टर है, तो वो सपोज टू बी उनका जो एक गाना, एक शख्स, वो गाना मतलब फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द एल्बम होने वाला था. लेकिन जुनून इतना अच्छा लगा सबको, तभी अमित त्रिवेदी वाज न्यू म्यूजिशियन, बट हमने फिर भी कहा कि नहीं, यही गाना रखेंगे. एंड लद्दाख में जाके उसका वीडियो शूट किया था. एंड या और उसका वीडियो पहले हम लोग जाके उज्बेकिस्तान जाने वाले थे शूट करने के लिए वीडियो. सो वी ऑल planned out कि कैसे उज्बेकिस्तान जाना है, क्या करना है, क्या शूट करना है. बट वी couldn't go to उज्बेकिस्तान बिकॉज उज्बेकिस्तान थोड़ा तभी इतना सही नहीं था, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सही नहीं था. बट 1-2 महीने पहले मैं जाके आया, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैं एक गाना रिकॉर्ड, मतलब वीडियो शूट करके ही आऊंगा. Well, तो मैंने the 2 locations वीडियो are शूट किए. beautiful. Yeah. Even Ladakh and Uzbek, beautiful location. या
I hope traveling becomes normal once again. या हम लोग जब उज्बेकिस्तान गए थे, इट वाज केओस। आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ता है, बॉम्बे पहुंचने के बाद अलग टेस्ट, ये सब वो सब, बहुत डिफिकल्ट टाइम था, बट या इट वाज ब्यूटीफुल। सो हियर वी गो। चलो। ये मेरे दिल में कैसा जुनून, मन को क्यों ना मिले अब सुकून, दिल लगी का जुनून, जिंदगी का जुनून, जुनून 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 चढ़ रहा है। लफ्जों में कह ना सकूं। नशा ही नशा रात दिन है, न पूछो ये कैसा प्यार है, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। नशा ही नशा रात दिन है, न पूछो ये कैसा प्यार है, लफ्जों में कह ना सकूं, बिन कह भी रह ना सकूं। Beautiful. And I noticed a थैंक यू। smile while singing. आपके मुंह पे like इतनी प्यारी सी स्माइल रहती है while singing. Usually people are very serious and you're smiling throughout. कि देखने वाला भी देखो, oh, he's smiling. The smile is so nice. ये मैंने एक्चुअली मैं पहले जब मतलब व्हेनेवर आई यूज्ड टू सिंग, तो मैं स्माइल नहीं रखता था, मेरी मेरी वॉइस में स्माइल कम थी, और Okay. ये आई रियलाइज कि ये चीज मुझे अवॉइड करनी है, तो मैंने अपने अंदर वो चीज डाल ली कि मैं जब भी गाऊंगा मैं स्माइल रख के गाऊंगा। सो अरे so nice. It's so good. Yeah. या एंड देन नाउ अभी भी मैं जब भी गाने की कोशिश करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं स्माइल के साथ गाऊं, क्योंकि आजकल लोगों को ये पसंद है, समझ रहा All right. I know. And then just whole life, at least seeing somebody smile makes the other person smile. हूँ। फिर मैं आपको बोला आपका कोई पुराना फेवरेट सॉन्ग लाइक यू सेइंग यू लव यशोदा, सो उनका कोई एक गीत आपके जो आपको बहुत ही पसंद है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वाह ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे रोमांटिक गाना उठाया आपने। या आई लव दिस सॉन्ग, और मैंने इसका एक कवर वर्जन भी बनाया था। जी। अनीता हसनंदानी के साथ एक सॉन्ग किया था हमने मेरे यूट्यूब चैनल पे, एंड ओके। आई लव मुझे बहुत पसंद है। इसका अंतरा बहुत कमाल का है, तो मुझे मतलब इन्होंने लिखा भी बहुत कमाल का ये गाना, और मतलब इतना प्यार वाले लोगों ने लिखा है, शायद ऐसा लगता है कभी कभी। I've seen most of your latest covers as well. I loved Shayad. And आपके कौन सा which is your favorite now? cover जो आपने किया जो आपको पसंद या आपको मजा आया? I mean, सभी बहुत अच्छे हैं, of course. थैंक यू। मुझे मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इनको ही सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ, और मैं आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ स्टेज शोज बिफोर इंडियन आइडल, तो मुझे कभी भी गाने का, जो ओल्ड सॉन्ग गाने का मौका मिलता है, तो मैं हमेशा आई आई लव परफॉर्मिंग दो सॉन्ग्स, और कवर। बट आई यूज्ड टू फील कि कब बहुत सारा कवर्स हो रहे हैं, और इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता था। बट जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं, मैं हमेशा मैंने कोशिश की कि वो मैं, आजकल कॉपीराइट की वजह से बहुत इश्यूज हो जाते हैं, बट करने की कोशिश तो मैं हमेशा करता था। It keeps you so touched because you probably grew up listening to it and आपकी inspiration.
So amazing. So I think इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, anything you would like to say to your fans in Middle East and Dubai, everywhere, and of course in India who signed in? Any message, any love? I hope I'll travel soon क्योंकि Yes. you know I love to come to Dubai and हम लोग अभी मैं क्वारंटीन में था तो मैं सोच रहा था कि काश मैं यहाँ से फिर निकल के हम लोग कहीं और चले जाए खासकर दुबई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर कहीं सेटल हो सकता हूँ तो दुबई में या शारजा या ऐसी जगह पे मिडिल ईस्ट में हो सकता हूँ क्योंकि यहाँ से मैं बॉम्बे भी बहुत जल्दी आ सकता हूँ It's so and close. And then yeah there's so many Indians out there and South Asian that you feel connected and at home. yes So, and it's almost like Bombay. मुंबई का जो वाइब है ना it's almost the same vibe. Only वो थोड़ा clean है सब कुछ अच्छा है वहाँ yeah, enjoy. In fact, with our country, जो मास्क डर के मारे भी नहीं उतारता. यहाँ पे मतलब आप यस आपको डरा देंगे अगर मास्क आपने नहीं पहना है तो Oh yeah, it's a big terror mask. या हमारे यहाँ पे मतलब बॉम्बे में हर जगह पे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर भी अभी मैं कोविड की वजह से आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग सब लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं क्या है कोई मास्क पहन के नहीं जा रहा है बट यू कांट फाइट विद पीपल नहीं करना है लोगों को सो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग But yeah. But I would once again really like to thank you so much कि आपने time निकाला and you were recovering also and you connected to the fans here. We're very very happy and I hope कि आप जल्दी आओ Dubai and live shows हो and we get to see you here in events and it would be amazing and Rizwana जी को भी thank you कहना चाहूँगी. She connected me to you. Yeah, thank you Rizwana aunty, thank you so much. Yeah, and Nadia, I'm very happy I'm talking to you क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है बात करने में मैं आई लव टॉकिंग टू पीपल Good, come आजा मैं आपको Dubai I take you around खाना भी खिलाऊंगी बहुत सारी बातें करेंगे और तंग नहीं करूंगी खाना खाने के लिए. ठीक है उसी बात पे से जाते जाते आई विल सिंग वन मोर सॉन्ग आई लव दिस सॉन्ग स्पेशली और आजकल मैं मतलब थोड़ा ये गाना ज्यादा सुन रहा हूँ इट्स अ गजल हमारे जगजीत सिंह साहब का एक बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफताब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता. Beautiful. Wow. You're a ghazal singer भी हो. मैं पुरानी चीजें आप मुझे मतलब मैं थोड़ा My God. Jagjit, I was not expecting this. That's so amazing. Seriously, Jagjit Singh, I mean, what beautiful ghazals. Still, we hear it, mashallah. Yes. Now, good to see you. You do ghazals also, mashallah. Great. So, thank you so much, Abhijit. Lots of love to you. Lots of blessings and dua ke jaldi se aap theek ho jaye. And be out and just come to Dubai and obviously everywhere. And हमें बहुत सारा काम और गाने सुनने को मिले. And thank you so much for calling me. मुझे बहुत मजा है आपसे बात करते हुए and whoever listening to me हमें जो भी सुन रहे थे सारे मिडिल ईस्ट के सारे हमारे शो पर thank you so much for giving so much love and keep loving us like that always. Thank you. Always keep smiling. I love your smile. I think everybody loves your smile. Keep smiling. Great. Thank you so much. You can disconnect and log out. Yes. Bye. Thank you. Take care. Bye. So guys, that was Abhijit Sawant with us with such beautiful voice and amazing tracks that he sang for us. I'm so touched and blessed. And I wish him all the speedy recovery. And for everybody who's joined us, Abhijit's fans, people from India and Dubai and everywhere else, thank you so much. Keep showing your love to everybody and all the artists who are coming in. Very soon we will be back with another celebrity on the show. And once again, thank you so much. Take care, look after yourself, be safe and keep family safe. Thank you.